Hope you are blessed. Hallelujah. मैं आशा करता हूँ कि आप आशीषित हैं। Amen. Yes. Can I see your hands? क्या please? मैं आपके हाथों को देख सकता हूँ? Oh, wonderful. हालेलुया। Can I see your hands? क्या please? मैं आपके हाथों को देख सकता And हूँ? move your hands. अपने Hallelujah. हाथों को हिला के दिखाइए। Amen. आमीन। Freely. Do it freely. और हवा में उड़ाइए। हालेलुया। Don't do tata. छोटा वाला नहीं चाहिए, Hey, बड़ा come बड़ा on. हाथ Hey, हिलाइए। hallelujah. हालेलुया Shaka जीसस। riva. Hallelujah. Thank you Lord। Glory. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The Holy Ghost will come upon your life in Jesus' name. पवित्र आत्मा आपके जीवन में यीशु के नाम से आ जाए। Amen. आमीन। No more tatas. Only waving hands. Hallelujah. Praise God. Amen. In the name of Jesus. हालेलुया। अपने हाथों को हिलाइए यीशु के नाम से। Amen. आमीन। Amen. Praise God. Praise the Lord। What a great joy to come every Sunday and minister the word of God to your life. ये कितना आनंद की बात है कि हर एक रविवार आके आपके साथ शामिल होके प्रभु के जीवित वचनों को आपको दे पाता हूँ। It's a great joy from the Lord also. ये सचमुच बहुत आनंद की बात है प्रभु यीशु की ओर से भी। Because I have to prepare myself and I have to come before you. और मुझे अपने आप को तैयार करके आपके सामने आना होता है। And that preparation is helping me to have a communion with the Lord. Hallelujah. और यही जो संगति है जो मुझे तैयार करता है इस बात के लिए कि मैं सचमुच प्रभु के साथ सहभागिता यानी उनके साथ सम्मिलित होने पाऊं। And when the Lord used to talk to me and when I receive the word and I come and deliver this word to you, और जब प्रभु मुझसे बात करता है, मैं उन वचनों को जब पाता हूँ और जब मैं आपके पास आता हूँ, I am blessed. मैं तो आशीषित हो जाता Because हूँ I understand the heart of God. क्योंकि तब मुझे मालूम होता है कि परमेश्वर का हृदय है क्या। Amen. आमीन। And you also wait from a long time to hear the word of और God. आप भी इंतजार करते इस लंबे समय तक कि आपको उनका वचन मिलने पाए। That is the relationship what God has given a man of God and the believers. Hallelujah. यही वो रिश्ता परमेश्वर ने परमेश्वर के दास और उनके विश्वासियों के बीच में दिया है। That's why the church is all about. इसी से तो कलीसिया है। Amen. आमीन। And we are the family of God. और हम सारे जो लोग हैं हम परमेश्वर के परिवार के लोग हैं। And by the blood of the Lamb, और मसीह मेमने के लहू के द्वारा we all are protected. हम सब बचाए गए हैं। We all are हम protected. सब बचाए गए हैं The blood has so much of power. क्योंकि उनके लहू में इतना ज्यादा सामर्थ है। The sacrifice of Jesus has so much of power क्योंकि यीशु मसीह के बलिदान में बहुत सामर्थ है। that even the sickness and disease has no power to come and enter into your spirit. क्योंकि इतना ज्यादा सामर्थ है कि बीमारी और रोगों को इतना भी ताकत नहीं है कि वो आपकी आत्मा और शरीर में प्रवेश कर If you जाए। are going through weaknesses, अगर आप कमजोरियों से गुजर रहे हैं, call the blood of Jesus. आप यीशु के लहू को बुला लीजिए। Speak from your mouth or declare from the mouth, oh blood of Jesus, come and help अपने me. मुंह से बोले और घोषणा करें कि यीशु का लहू मेरे जीवन में आ और मेरी मदद कर। If you are going through fear, call the name of the Lord Jesus. अगर आप डर से गुजर रहे हैं तो यीशु मसीह के नाम को पुकारें। Honor the blood of Jesus. आदर दें उनके उस पवित्र लहू को, Because there is power in the blood of Jesus. क्योंकि उनके लहू में सामर्थ है। Amen. आमीन। Amen. आमीन। There is no sin in the blood of Jesus. उनके लहू में पाप नहीं है, But there is so much of power to take away the sin of the world. परंतु उनके लहू में इतना सामर्थ है कि संसार के लोगों के पापों को वो लेकर अपने लहू से धोकर साफ कर दे। That's why the Lamb of God came into the world to become a sacrifice for our sins. इसी से जो परमेश्वर का मेमना है वो आया ताकि वो वध किया जाए और हमारे पापों को वो अपने लहू से धो दे। The Bible says he was obedient to the death on the cross. बाइबल कहती है कि वो मृत्यु तक आज्ञाकारिता में बना रहा। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। If today he is saving our life from all our difficulties and dangers because he paid the price on the cross. अगर आज प्रभु यीशु हमें हर एक मुसीबतों से और कठिन मार्गों से बचा रहे हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने प्राण को उस कलवरी क्रूस पर दे दिया। Not because we were righteous people, ऐसा नहीं है कि हम कोई धर्मी जन हैं, but he was the righteous one. वो अकेला एक धर्मी था। Hallelujah. हालेलुया। And through his righteousness we became righteous. और उनकी धार्मिकता के कारण हम धर्मी हो गए। Hallelujah. आमीन। There is so much of righteousness is flowing
through His Spirit. याद रखिए उनकी आत्मा से बहुतायत की धार्मिकता बहती है And we receive it by faith. और हम विश्वास के द्वारा उसे ग्रहण करते And हैं। whenever we hear the word of और God, जब भी हम परमेश्वर के वचनों को सुनते it हैं come and touches our life. वो आकर हमारे जीवनों को स्पर्श करता है। Amen. आमीन। Hallelujah. Amen. Sometimes the word of God comes and we take a shower. It seems like we are taking a shower in the spiritual कई realm. बार परमेश्वर का वचन ऐसे आता है तो ऐसा लगता है कि आत्मा में हम स्नान कर रहे हैं। Amen. आमीन। We are getting fresh. और हम ताजे हो जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Worries are going. सारी परेशानियां चिंताएं चली जाती हैं। Sorrows are going. दुख चले जाते हैं। Sometimes we hear the word and we receive healing in our wounds. कई बार उनके वचनों को हम सुनते हैं तो हम हमारे दुख और जख्मों में चंगाई को पाते हैं। We feel like somebody is pouring balm on our wounds. हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारे जख्मों पे मरहम लगा रहा है। Hallelujah. हालेलुया। And when we were crying in tears, और जब हम रोते हैं आंसुओं से, in sorrowful, उस दुख में, in sorrowful heart, उस दुख भरे हृदय में, hallelujah, हालेलुया, His hands will come and wipe away our tears. और उसके हाथ आके हमारे आंसुओं को पोंछ देते And हैं। suddenly a joy erupt in our soul. अचानक से एक आनंद हमारे आत्मा में फूट के निकलता है। And the Bible says your sorrow will turn into joy. हालेलुया। और बाइबल कहती है कि सचमुच तेरे दुख आनंद में बदल जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Why I am telling you all these things happens when you hear the word of God. क्यों मैं आपको ये सारी बातें कह रही हूँ? जब आप इन चीजों को सुनते तो परमेश्वर के वचन के द्वारा कार्य होता है। Today God is going to bless the church in a supernatural way. मेरे प्रियो, आज सचमुच परमेश्वर अपने लोगों को एक सामर्थी अद्भुत वचन से आशीष दे देगा। The Holy Spirit has told me, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा है, if today they are going to hear the word, अगर आज वो वचन को सुन लेंगे, they will be connected with the heaven. हालेलुया, वो स्वर्ग से जुड़ जाएंगे। Amen. How many of you आमीन। want to connect to the heaven? कितने लोग चाहते हैं कि स्वर्ग से जुड़ जाए आज? Praise the Lord. Praise the Lord. I want to open certain secret things from the word of God so that you and God will be connected. मैं आज परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ गुप्त और छुपे बातों को मैं आज उजागर करूंगा, जिसकी वजह से आप स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर से आत्मा में एक हो जाएंगे। Amen. आमीन। Oh, this is the time where we have to be connected to the heaven. और अब Hallelujah. यही समय है कि स्वर्ग से हम जुड़ जाएं। Amen. आमीन। For example, as you have been connected with me in the spirit right now, जिस तरह से आप मेरे साथ आत्मा में जुड़ गए हैं इस वक्त, in the same manner, उसी तरह से मेरे प्रियो, hallelujah, हालेलुया, the Holy Spirit is planning so that you and the Lord or the heaven will be connected in the spirit. पवित्र आत्मा की ये योजना है कि आप और प्रभु स्वर्ग में एक होके जुड़ जाए। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। For that He has to open your eyes. और जिसके लिए ये जरूरी है कि प्रभु आपकी आंखों को खोल दे। Hallelujah. आमीन। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Amen. आमीन। I'm going to take a text and I'm going to explain you through that scripture so that you will understand and you will prepare yourself so that you will be connected with the heaven. Hallelujah. मेरे प्रियो, एक वचन के द्वारा मैं आपको जोड़ूंगा जिसकी वजह से आप उन वचनों को समझ पाएंगे और फिर आप स्वर्ग में जुड़ने पाएंगे। Amen. आमीन। Now let's come to Matthew chapter 16 verse 13 to 16. मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय के 13 वचन से लेकर 16 वचन तक हम पढ़ेंगे। Just carefully read it, okay? इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। Put your focus on these words. इन वचनों पे अपने ध्यान को आप केंद्रित कीजिएगा। Now when Jesus went into the region of Caesarea Philippi, he asked his disciple, "Who do people say that the Son of Man is?" जब यीशु उस कैसरिया प्रदेश से फिलिपी की ओर चला तो उसने अपने चेलों से पूछा, लोग क्या कहते हैं मनुष्य के पुत्र के बारे में? Now listen, hallelujah. बड़े ध्यान से सुनिए। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। How many of you have read that scripture? इस वचनों को आपने कितने लोगों ने पढ़ा है? And how many of you heard right now? और कितने लोगों ने अभी सुना है? Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। The Bible says Jesus is asking his disciple, बाइबल कहती है कि यीशु मसीह अपने चेले से पूछते हैं,
Who do people say that the Son of Man is? लोग क्या कहते हैं मनुष्य के पुत्र के बारे में? Hallelujah. Hallelujah. Now listen, Jesus is walking and doing ministry. People are coming to him. People are healed. People are seeing deliverance. मेरे प्रियो, यीशु मसीह चल रहे हैं, अपनी सेविकाई को कर रहे हैं, लोगों को चंगाई दे रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं, And there are- छुटकारा मिल रहा है। And there are certain few people who are very close to him. He is asking to them, disciples, that what the people is talking about me. और कुछ लोग जो उनके नजदीक हैं वो उनके चेले हैं, और अपने चेलों से प्रभु यीशु पूछते हैं कि लोग क्या कहते हैं मनुष्य के पुत्र के बारे में। Mark that word, Son of Man. इस वचन के ऊपर आप अंडरलाइन कर लीजिए, मनुष्य के पुत्र। See, Jesus was just like us. याद रखिए, शरीर में यीशु मसीह हमारे ही समान थे। Amen. हालेलुया। The difference between us and him is only the purity of the blood. हमारे में और प्रभु यीशु मसीह में सिर्फ एक अंतर था, वही ये कि उनका लहू पवित्र था, पाक था, साफ था। The flesh is the same. शरीर एक ही जैसे था। Amen. आमीन। Praise the Lord. आमीन। Amen. आमीन। He also has to go through temptations. याद रखिए, जिस तरह से हम परीक्षाओं से गुजरते, प्रभु यीशु को भी परीक्षाओं से गुजरनी पड़ी थी। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। But he was from God. लेकिन याद रखिए मेरे प्रियो, वो स्वयं परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ था। He was sent by God the Father. ओ स्वर्गीय पिता ने उन्हें भेजा था। Hallelujah. आमीन। That's why he says to his disciple, what the people is talking about this flesh. अब यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से पूछते हैं कि क्योंकि वो मनुष्य का पुत्र है शरीर में, तो वो पूछते हैं कि बता, लोग मनुष्य के पुत्र यानी मेरे विषय में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? What they're talking about Jesus. मेरे विषय में वो लोग क्या चर्चा करते हैं? Praise the Lord. आमीन। Hallelujah. Yes. Now when Jesus was born in this world, God gave a name and that name was Jesus. जब यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी में हुआ तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को नाम दिया यीशु। Hallelujah. Hallelujah. That means he is the savior of the world. जिसका ये अर्थ ही होता है कि वो बचाने वाला संपूर्ण लोगों को इस पृथ्वी पर। Amen. आमीन। And the same Lord Jesus is asking his disciple what people are talking about और me. वही प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बोलते हैं कि लोग क्या कहते हैं, मुझे बता मनुष्य के पुत्र के बारे में। Amen. आमीन। Today the same Jesus is also asking you what you are talking about him. आज वही प्रभु यीशु मसीह आपसे पूछते हैं कि आप उनके विषय में क्या चर्चा करते हैं। Praise the Lord. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Now the disciple answered him and they और यहाँ said, पे चेलों ने उत्तर दिया और वो कहते हैं, some says John the Baptist, कुछ कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, some says prophet Elijah, कुछ कहता है कि एलिया है तू, and some says prophet Jeremiah. और कोई कहता है यिर्मयाह है तू। Amen. हालेलुया। Praise the और Lord. कोई कहता है कि तू भविष्यवक्ता है। Amen. आमीन। There were people they says he is Elijah. लोग हैं, कुछ लोग हैं, कोई कहता है कि वो एलिया है, Some people says he is Jeremiah. कोई कहता है वो यिर्मयाह है। Hallelujah. हालेलुया। And some people says he is John the Baptist. कोई कहता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। Praise the Lord. हालेलुया। These three prophets were very powerful prophets in the word of God. क्योंकि ये जो तीन भविष्यवक्ता थे ये बड़े सामर्थी थे और इनका नाम था परमेश्वर के वचनों में, Because they were also sent by God as a prophet. क्योंकि ये भी परमेश्वर के द्वारा भेजे गए थे एक भविष्यवक्ता की नाई। Amen. आमीन। But the difference between the three prophets and the Lord Jesus is they have done sin, but the Lord Jesus has not done sin. इन तीनों भविष्यवक्ताओं में और यीशु में एक ही अंतर था, ये सचमुच पाप में जीवन में यानी उन्होंने पाप किया था अपने जीवन में और यीशु मसीह उस पाप से रहित थे। Amen. आमीन।
they have to go and repent for their sins, but Jesus was the one who is ready to forgive the sins. हालेलुया। इन भविष्यवक्ताओं को अपने पापों के लिए जाके पश्चाताप करके क्षमा मांगनी थी, परंतु प्रभु यीशु मसीह लोगों के पापों को क्षमा करते थे। Hallelujah. हालेलुया। Lord Jesus Christ never went for repentance of sin. याद रखिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह कभी अपने पापों के लिए जाके उन्होंने कभी भी पश्चाताप नहीं किया। Hallelujah. क्योंकि उन्होंने पाप ही नहीं किया। Amen. आमीन। That is the difference between the Old Testament prophets and the Lord Jesus Christ. यही तो अंतर है जो इस बात को साबित करता है कि सारे पुराने नियम के भविष्यवक्ता हो या कोई भी व्यक्ति और यीशु मसीह एक तरफ। Amen. आमीन। Now let's come to verse 15. और 15वें वचन की ओर चलते हैं। He said to them, but who do you say that I am? हालेलुया। 15वें वचन में फिर प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं, परंतु तुम्हारे बारे में क्या? यीशु अपने चेलों से पूछते हैं। यीशु ने उनसे पूछ के कहा, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? Praise the Lord. आमीन। First he asks about what the people are talking about me. पहले तो यीशु मसीह कहते हैं कि ये बता कि लोग मेरे बारे में क्या चर्चा करते हैं, क्या Amen. सोचते हैं मेरे बारे में। And the Lord got the answer. और यीशु को तो जवाब मिल गया। And later on then he said to his disciple, what you say about me? उसके बाद अपने चेलों से बोलते हैं कि अब तुम बताओ कि तुम लोग मेरे बारे में क्या कहते हो। And then Simon replied, हालेलुया। verse 16. और 16 वचन में शमौन पतरस उत्तर देता है। Hallelujah. Now listen. Simon was his original name. याद रखिए, जो इसका असली नेम है पतरस का, वो शमौन है। Amen. आमीन। But Peter was God given name. और जो पतरस है वो प्रभु के द्वारा उसे दिया गया है। Praise the Lord. आमीन। Hallelujah. आमीन। Now Simon was the original name. याद रखिए, शमौन उसका अपना वास्तविक नाम है। Amen. आमीन। He was the son of Jonah. Okay. और वो योना का पुत्र है। Amen. आमीन। Praise the Lord. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. But Peter was given by the Lord Jesus Christ. और जो ये पतरस नाम है वो स्वयं प्रभु यीशु के द्वारा शमौन को दिया गया है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. आमीन। Amen. आमीन। Praise God. Praise the Lord. That's why the Bible says Simon Peter replied, और उसके बाद बाइबल यूं कहती है, शमौन पतरस उत्तर देता है, you are the Christ. वो कहता है आप मसीहा हैं। Amen. हालेलुया। Praise God. He हालेलुया। said, you are the Christ and the Son of the living God. हालेलुया। शमौन पतरस उत्तर देता है, आप मसीहा हैं, जीवित परमेश्वर के पुत्र। Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। And when he said this word, और जैसे इन वचनों को वो कहता है, Lord Jesus said, Simon, your blood, your flesh has not revealed this, but my Father in heaven has revealed this revelation to you. और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उसे उत्तर देते हैं, शमौन, ये तेरे शरीर से उत्तर नहीं आया है या ये तू नहीं कह रहा, ये तो मेरे स्वर्ग में विराजमान पिता तेरे द्वारा कहलवा रहा है। Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I will stop for a moment. अब मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, Praise God. बस रुक जाता हूँ। Just close your eyes. अपने आंखों को बंद कर लीजिए। Just close your eyes. अपने आंखों को बंद कर लीजिए। Lord Jesus asked his disciple what the people is talking about me. यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं, यानी क्या चर्चा करते हैं। Disciple answered Lord Jesus. और उनके चेलों ने प्रभु यीशु को उत्तर दिया। Lord Jesus got the answer. यीशु को उत्तर मिल गया। And then he asked his disciple, और तब उसने अपने चेले से पूछा, what you are saying about me? और तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? And suddenly Peter replied, और शमौन पतरस उत्तर देता है, you are the Christ वो कहता है तू ही मसीहा है and the Son of the living God. जीवित परमेश्वर का पुत्र है। And there afterward the Lord Jesus said to the Simon, this revelation you have not received by the flesh and blood, but my Father in heaven. और इसके बाद प्रभु यीशु मसीह शमौन को उत्तर देते हैं, ये जो तुझे प्रकाशन मेरे विषय में मिला, ये तेरे शरीर या लहू या तेरी सोच से नहीं, ये तुझे प्रकाशन मेरे स्वर्गीय पिता ने तुझे दिया है। Now listen.
हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनिए। They are seeing a man. अब यहाँ पे सारे लोग एक मनुष्य को देख रहे हैं His name is Jesus. और उस मनुष्य के पुत्र का नाम यीशु है। Amen. आमीन। They are seeing a man. His name is Jesus. एक मनुष्य को देखते हैं और उसका नाम यीशु है। Hallelujah. हालेलुया। Praise God. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया। He's doing miracles. वो चमत्कारों को करते हैं। Amen. आमीन। He's preaching the word of God. और वो प्रचार करते हैं अपने स्वर्गीय पिता के वचनों का। But the people who are walking with him, they are seeing something different. Hallelujah. लेकिन जो लोग भीड़ उनके साथ चलती है वो उन्हें किसी और नजर से देखते हैं। They are not seeing a man, but they are recognizing that man, that he is a prophet, he is Christ, the Son of the living God. और जब लोग उसे देखते तो एक मनुष्य की तरह नहीं देखते हैं। कोई उन्हें देखता है भविष्यवक्ता की तरह और कोई देखता है उस मसीहा यानी परमेश्वर के पुत्र की तरह। That means when they see him as a prophet, जिसका ये अर्थ है जब वो उन्हें भविष्यवक्ता की नाई देखते हैं they are receiving the word from the prophet, तो जिसका ये अर्थ है कि भविष्यवक्ता से वो उन वचनों को पाते हैं and they see those words are manifested in their life. और ये देखते हैं कि ये वचन उनके जीवन में पूर्ण होता है। Amen. आमीन। But Peter, लेकिन पतरस, he is seeing above a prophet. Hallelujah. हालेलुया। लेकिन पतरस जो देखता है वो एक भविष्यवक्ता से बढ़कर देखता है। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। Are you looking Jesus in that way? अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है मेरे प्रियो, क्या आप प्रभु यीशु मसीह को शमौन पतरस की नाई देखते हैं क्या? Hallelujah. हालेलुया। When he uses this word, you are the Christ. हालेलुया। क्योंकि शमौन जब इस वचन को कहता है अपने मुंह से कि तू मसीहा है। Amen. आमीन। That means you are an anointed one sent by God. जिसका ये अर्थ है कि तू एक अभिषिक्त है जो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया है। Hallelujah. हालेलुया। You are sent by God as a king who can save us from all troubles. तो परमेश्वर के द्वारा एक राजा की नाई भेजा गया है ताकि हमें हमारे सारे परेशानियों से निकाले। Amen. आमीन। When he said this word Christ means this man, Jesus, is going to save us from darkness. This man, Jesus, is going to save us from danger situation. Hallelujah. This man, Jesus, is going to rescue us from difficult hours. जब यहाँ पे वो कहता है कि सचमुच तू मसीहा है तो इसका ये अर्थ होता है कि वो अंधकार से, ये मसीहा यानी यीशु अपने लोगों को अंधकार से, उस गड्ढे से, उस खराब परिस्थितियों से निकाल के उन्हें बचा लेंगे। That's why Peter said, you are Christ. और इसी से पतरस कहता है कि तू ही मसीहा है। And this revelation has not been released by his flesh and blood, but it has been released from the heaven. Hallelujah. याद रखिए मेरे प्रियो, शमौन पतरस को ये जो प्रकाशन है उसके शरीर या लहू, मांस या लहू के द्वारा नहीं वरन स्वयं स्वर्ग से स्वर्गीय पिता के द्वारा उसको दिया गया। Because he has gone into the word of God, क्योंकि वो सचमुच परमेश्वर के वचन के अंदर चला गया। and because in the word of God, God has promised in his word that he is going to send Messiah into this world. क्योंकि उस वचनों के द्वारा उसे ये प्रकाशन मालूम था कि परमेश्वर अपने वचन के अनुसार अपने पुत्र को भेज देंगे। Amen. आमीन। Hallelujah. Amen. He will surely send an anointed one, an anointed king who will come and save us. और उसे ये मालूम था कि एक अभिषिक्त जो है, जो अभिषिक्त राजा है, वो आएगा और हमें बचाएगा। Amen. आमीन। Bible never said before Jesus that God will send a king to rule over our life, but the Bible says God will send a king who is going to save us from darkness and will bring us into the glorious light. बाइबल कभी इस बात की घोषणा नहीं करती कि एक राजा आएगा और जो हमें
सचमुच हम पर राज्य करेगा, वरन इस बात की घोषणा करती है कि एक राजा आएगा और जो हमें हमारे पापों से बचा लेगा। Amen. Amen. It is not only He will save us from sin, but He will save us from every area of our life. Hallelujah. सिर्फ पापों से ही नहीं, वरन मेरे प्रियो, वरन हमारे जीवन के हर एक क्षेत्रों में, हर एक चीजों से हमें बचा लेगा। Hallelujah. आमीन। In the word of God, परमेश्वर के वचन के अनुसार when you read Isaiah chapter 42 and verse 1, जब यशायाह नबी की पुस्तक उसके 42 अध्याय के एक वचन को जब आप पढ़ते हैं, or Isaiah 61 from verse 1 to 3, और यशायाह नबी की 61 अध्याय के 1, 2 और 3 वचन को पढ़ते हैं, and Psalm 16, और भजन संहिता उसके 16 अध्याय को पढ़ते हैं, Daniel chapter 9, दानियेल की पुस्तक उसके 9 अध्याय को पढ़ते हैं। praise the Lord. Praise the Lord. You will find that God has promised to the people of Israelites that I am going to send Messiah into this world. Hallelujah. सारी चीजों में आप ये पाते हैं कि परमेश्वर अपने वचन में ये कहते हैं कि मैं मसीहा को भेजूंगा। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Before Christ was born 700 years ago, prophet Isaiah, he was speaking about Messiah. He will come into this world and save the people from their sins, from their difficulties, from sickness and disease in Jesus' name. हालेलुया। सचमुच 700 वर्ष पूर्व भविष्य वक्ता एलिया ने इस बात की घोषणा की कि सचमुच मसीहा आएगा और अपने लोगों को पापों से, बीमारियों से, कष्टों से, दुखों से छुड़ा देगा। Amen. आमीन। It was prophet Isaiah. Hallelujah. और यशायाह नबी ने इस बात की घोषणा कर दी थी। Praise the Lord. Hallelujah. आमीन। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Now when Peter was walking with Jesus, और जब पतरस प्रभु यीशु के साथ चलता था, he was watching everything. वो हर कुछ बड़े निकट से उनको देखता था। Whatever the Lord Jesus was doing, क्या कुछ प्रभु यीशु करते थे उसे बड़े ध्यान से देखता था। whenever he see people coming to him, और जब भी लोग को देखता था वो उनके पास आते थे, he used to heal the sick people. और यीशु मसीह सचमुच बीमारों को चंगाई देते थे। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. And whenever he see that people are coming and the way the Lord is responding and delivering them from all their troubles, और हमेशा पतरस देखता था कि लोग उनके पास आते हैं, यीशु कैसे उत्तर देते हैं, यीशु मसीह कैसे उन लोगों को उनके बीमारी और दुखों से छुटकारा देते हैं, बड़ी नजदीकता से देखता था। and when they come to Jesus, और जब वो लोग यीशु के पास आते थे, they used to feel the presence of God. और सारे चेलों को प्रभु यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति महसूस होती थी। Hallelujah. हालेलुया। Whenever they see the Lord Jesus' face, और जब भी वो प्रभु यीशु मसीह के मुख को देखते थे, that face is shining with the glory of God. हालेलुया, क्योंकि उनका चेहरा सचमुच परमेश्वर की महिमा में चमकता था। And when they see his dresses, और उनके वस्त्र को जब देखते थे, it was shining like a glory. उसमें Hallelujah. एक अद्भुत महिमा होती थी। Amen. आमीन। Amen. आमीन। In fact, a woman who touched the hem of the garment Hallelujah. and received a great miracle. यहाँ तक कि उस स्त्री ने जब उनके वस्त्र के कोना को ही छू लिया तो उसे उसके शरीर में सामर्थ उतर आया। Amen. आमीन। Now listen, my dear GRPC family. बड़े ध्यान से सुनिए मेरे प्रिय जीआरपीसी परिवार के जन। Peter saw everything. पतरस ने सब कुछ देखा। Amen. आमीन। He saw water turning into wine. उसने ये देखा कि सचमुच जो पानी है वो दाखरस में बदल गया। Because in that particular day there was a crisis. और उस खास दिन में सचमुच आपत्तिकालीन परिस्थिति थी। Amen. आमीन। And he turned water into wine. और सचमुच प्रभु यीशु ने उस पानी को दाखरस में बदल दिया। He solved the problem of that marriage. और उस विवाह में उस परेशानियों का जो भी था उसका हल निकाल दिया। Hallelujah. Hallelujah. And he proved himself that he is the savior of that particular problem. और उसने यीशु ने उस दिन वो साबित किया कि उस विवाह के स्थान में जो भी परेशानी थी वो वहां पे बचाने के लिए खड़ा था। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। And then he moving forward. और वो आगे जब बढ़ते हैं, Hallelujah. Hallelujah. The Lord Jesus started walking in water. और यीशु मसीह जब पानी पे चलने लगते हैं, Amen. आमीन। And when Peter was sinking, और जब पतरस डूबने लगता है,
The Lord Jesus stretched out his hands and pulled him. और यीशु मसीह अपने हाथ को बढ़ाकर उसे बाहर निकाल लेते हैं। And when he commanded the storms and the waves to be quiet, और जब तूफानों को और उन धाराओं को जब वो कहते हैं कि शांत हो जा, they heard those words. और वो उनके मुख से निकले वचनों को चेले सुन रहे होते And when they हैं। saw the Lord Jesus Christ, और जब वो प्रभु यीशु को देखते हैं, they said, what type of a man he is. और वो कहते हैं अरे ये किस तरह का व्यक्ति है, How much authority he is having. कितना ज्यादा इसके पास अधिकार है। Even the waves and the storms obey his voice. और यहाँ तक कि जितने भी तूफान और हवाएं और पानी वो भी इनकी बातों को सुनते हैं। Amen. आमीन। And in the remote places where 5,000 people were gathered to hear the word of और God, ऐसे सुनसान जगह पे जहाँ पे 5,000 लोग उनके पीछे चल रहे होते हैं और वचनों को सुनते हैं। amen. आमीन। People were hungry. लोग भूखे होते हैं। Amen. आमीन। People were hungry. लोग भूखे होते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. There was no food to eat. उनके लिए कोई भोजन का प्रबंध नहीं होता। And with 5 loaves of bread and 2 fishes, he has done miracle and he fed 5,000 people. और Hallelujah. सचमुच 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा वो 5,000 लोगों को भोजन करा देते हैं। In every miracle there was a crisis. याद रखिए ये सारे चमत्कार तब हुए जहाँ पे सचमुच बहुत बड़ी कमी घटी और जरूरत थी। There was a problem. वहाँ पे परेशानी मौजूद थी। There was a trouble. वहाँ पे सचमुच परेशानियां थी। There was a pain. वहाँ पे दर्द था। There was a storm. वहाँ पे तूफान था। But when Jesus came, लेकिन जब यीशु मसीह आता है, when he put his hand, जब वो अपने हाथ को देता है, when he speak the word, जब वो वचनों को कहते हैं, automatically problems were solved in the name of Jesus. अपने आप सारी परेशानियों का हल निकल जाता है यीशु के नाम से। And Peter saw it with his own eyes. और पतरस स्वयं अपनी आंखों से देखता है। Hallelujah. हालेलुया। He saw the people how they come into sickness and disease. वो देखता है, उसे मालूम है कि लोग बीमारी और रोगों में कैसे भर के आते हैं। How the people came in demonic oppressions and depression. कैसे लोग दुष्ट आत्माओं से ग्रसित और सचमुच सताए गए हैं। How the cripple used to come and long for him. कैसे लंगड़े लूले लोग उनके पास आते हैं। How the blind man, they used to call him Son of Yes. David, have mercy. और कैसे वो अंधा व्यक्ति चिल्ला के कहता है, ए दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। How the sister of Lazarus, they came running to him and crying and pleading to Lord Jesus. वो ये भी देखता है कि लाजरस की बहनें कैसे दौड़ के यीशु के पास आके निवेदन करती है अपने भाई के लिए। Hallelujah. आमीन। Hallelujah. Amen. When people used to come in numbers with sickness and disease, and when he used to touch them and heal them, all these miracles were seen by the eyes of Peter. Hallelujah. हालेलुया। जब लोग एक भीड़ की तरह यीशु के पास आते हैं तो इस आश्चर्यकर्म और चमत्कारों को देखते हैं, चंगाई को देखते हैं, तो ये सारी चीजों को पतरस भी अपनी आंखों से देख रहा है। Whenever they see with their own eyes, जब भी वो अपनी आंखों से देख रहे होते हैं, and whenever they interact with him, और जब भी यीशु मसीह के साथ उनकी वो बातचीत होती है। hallelujah, हालेलुया। they are not seeing the Son of Man, but they are seeing that he is not a man, but he is himself a God. Hallelujah. तब वो ये नहीं देखते कि ये परमेश्वर का एक मनुष्य का पुत्र है, वरन वो ये देखते हैं ये तो स्वयं परमेश्वर है। He is an angel of God coming down from heaven to the earth. ये तो सचमुच परमेश्वर का स्वर्गदूत है जो स्वर्ग से भेजा गया है पृथ्वी पर। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the That's Lord. why Peter said, you are the Christ, the Son of living God. इसी वजह से पतरस ने इन सारी चीजों को देखा, तभी वो अपने मुख से कह पाया कि तू मसीहा है, सचमुच जीवित परमेश्वर का पुत्र है। He remembered everything, how the angel of God spoke to Moses and brought the people out of Egypt. और तब पतरस ने सब कुछ याद किया कि किस तरह से मूसा से स्वर्गदूत ने बात करके और अपने लोगों को उस बंधुआई मिस्र देश से निकाल के लाए। Hallelujah. Hallelujah. Now listen very carefully. बड़े ध्यान से सुनिए। According to the scriptures, वचनों के अनुसार from the beginning onwards, शुरुआत से ही
God was not ruling the people. याद रखिए, परमेश्वर लोगों के ऊपर अपनी प्रभुता नहीं करता था। Amen. आमीन। Whenever you read the word of God, जब भी आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, God was coming and rescuing his people. और परमेश्वर क्या करते थे, वो आते थे और अपने लोगों को छुटकारा देते थे। God always used to come and help his people. परमेश्वर हमेशा आके अपने लोगों की मदद किया करते थे। Hallelujah. Hallelujah. Though he was a king, but he used to come and love and heal and rescue the people. Hallelujah. जबकि वो राजा था, परंतु वो आता था लोगों को चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, उनको बचाने के लिए। हालेलुया। Amen. आमीन। That is the Lord. यही तो है हमारा प्रभु। And that's what Peter saw in और Jesus. यही चीजों को पतरस ने सचमुच यीशु के अंदर देखा। Praise God. आमीन। He saw in Jesus something. और ये सारी चीजों को समान पतरस ने यीशु के अंदर देखा। That he is really the Savior. ये सचमुच बचाने वाला है। Whatever the prophets are talking, they are talking about him. और जो भी भविष्यवक्ता लोग इनके विषय में बात करते हैं, वो इन्हीं के बारे में बात करते हैं। That's why he says you are the Christ. और इसी से उसने कह दिया, क्योंकि उसको मालूम था कि मसीहा ही आएगा, उसने कह दिया कि तू ही मसीहा है। You are the Christ, the Son of living तू God. ही मसीहा है, जीवित परमेश्वर का पुत्र। And in boldness, I also declare that Jesus is Christ, the Son of living God. सचमुच मैं अपने मुख को खोल के इस बात की घोषणा करता हूँ कि सचमुच यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर का पुत्र है, जो स्वयं मसीहा है। Praise the Lord. Praise the Lord. When they recognize all these things in Jesus' life, और जब उनके चेले और खास तौर से पतरस इन सारी चीजों को यीशु मसीह के अंदर पहचान जाते हैं। Amen. आमीन। You know what happened? आपको मालूम क्या होता है? What the Lord Jesus said? आपको मालूम यीशु मसीह ने क्या कह दिया? Peter, पतरस, your flesh and your blood has not revealed this. ऐसा नहीं है कि तेरे शरीर या तेरी सोच या तेरे लहू के द्वारा तू कह रहा है। My Father has revealed it from the heaven. और मेरा जो स्वर्गीय पिता है, उसने स्वर्ग से तुझे इस बात का खुलासा कर दिया है। Praise the Lord. हालेलुया। That means जिसका ये अर्थ है, when we say from our mouth, जब हम अपने मुखों से जब इस बात की घोषणा करते हैं, when we declare in faith जब हम विश्वास में घोषणा करते हैं that Jesus is the Son of living God, क्योंकि यीशु मसीह सचमुच जीवित परमेश्वर का पुत्र है, we are connected from the heaven. हम तब उसी वक्त स्वर्ग से जुड़ जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. आमीन। Amen. आमीन। You know, आपको मालूम मेरे प्रियो, when Jesus saw that revelation in Peter's life, और जब यीशु मसीह ने शमौन पतरस के अंदर इन प्रकाशनों को देखा, Amen. आमीन। You know what Jesus said? आपको मालूम प्रभु यीशु ने पतरस से क्या कहा? You are rock. और कहा, पतरस तू ही वो पत्थर है। You are not an ordinary person. तू मामूली व्यक्ति नहीं है पतरस, You are a strong person. तू मजबूत इंसान है। Hallelujah. हालेलुया। You are the rock. और वो कह देते हैं कि तू ही वो मजबूत पत्थर है, Because you got a revelation. क्योंकि तुझे ही तो वो प्रकाशन मिला है। You are connected with the heaven. और तू ही तो स्वर्ग से जुड़ा है। Your eyes are blessed. तेरी आंखें आशीषित है। Hallelujah. हालेलुया। Because you are sensing God's power in your life. क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि परमेश्वर के सामर्थ को तू अपने जीवन में पाता है। That's why I will build my house on this rock. Hallelujah. इसी से है पतरस, मैं तेरे ऊपर अपनी कलीसिया की स्थापना करूंगा। Hallelujah. आमीन। Let us take out that word church, okay? कलीसिया को निकाल देते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। Yes, of course, he has already built the house of God. निश्चय ही सचमुच उन्होंने परमेश्वर ने कलीसिया की स्थापना कर दी है। Amen. आमीन। Now he doesn't have to build another church, अब okay? दूसरी कलीसिया की आवश्यकता नहीं है। Hallelujah. आमीन। But there is something which he is going to build in
your life. लेकिन याद रखिए मेरे प्रिय, ऐसा तो कुछ है कि प्रभु यीशु आपके जीवन में बनाना चाहते हैं। Amen. आमीन। He is going to build a palace. He is going to build a house. He is going to build something in your life so that he can come from heaven and dwell in your life. याद Hallelujah. रखिए स्वयं प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर उस महल को, आपके अंदर उस घर को, आपके अंदर उस स्थान को बनाना चाहते हैं ताकि वो स्वयं आके आपके उस घर में विराजमान हो जाए। Because the Lord Jesus said, I will come and I will come with my Father. I will come and we both will be together with you. Hallelujah. और क्योंकि यीशु मसीह ने कह दिया था अपने चेलों से कि मैं आऊंगा, मैं अपने पिता के साथ आऊंगा और तुम्हारे साथ वो रहने का स्थान बनाऊंगा और तुम मेरे साथ होगे, मेरे पिता के साथ होगे और हम सब साथ होंगे। Hallelujah. आमीन। Now listen. बड़े ध्यान से सुनिए। The moment when you are hearing the word of God, जैसे और जिस वक्त आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे होते हैं, faith comes. विश्वास आता है। Amen. आमीन। And automatically और अपने आप you will be knowing more and more about the Lord Jesus. आप और भी प्रभु यीशु के बारे में जानने लगते हैं, He raised the dead. क्योंकि आपको मालूम है कि उन्होंने मृतकों को जीवित किया, He cleansed the leper. उसने सचमुच कोढ़ियों को साफ किया, He healed the broken heart. जितने भी हृदय टूटे थे उसे चंगाई दी, He healed the sick people. उन्होंने बीमारियों को चंगाई दी And he has forgiven the sin of the people. और लोगों के पापों को क्षमा कर दिया And he fed the hungry. और जितने लोग थे भूखे उन्हें भोजन खिला दिया। Hallelujah. आमीन। He calmed the waves and the winds. और इतना ज्यादा ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कि तूफान और हवाओं को भी शांत कर दिया। He says to the storm, be quiet. और उन्होंने तूफान से कहा शांत हो जा। Hallelujah. आमीन। If you believe today अगर आज आप विश्वास करते हैं that Jesus can do this, यीशु मसीह कर सकते हैं, if you believe that Lord Jesus, can you please help me? अगर आप विश्वास करके ये कहते हैं कि प्रभु यीशु आज मेरी मदद कर दीजिए, It will be done in your life. याद रखिए इसी वक्त वो आपके जीवन में हो जाएगा। Only you have to believe it. सिर्फ आपको विश्वास करना है। Lord Jesus, I heard your word. आप कहिए कि प्रभु यीशु मैंने तेरे वचनों को सुना है, I know that you can do miracles. मुझे मालूम है कि आप चमत्कारों को करते हैं, You can heal my sick body. तो मेरे बीमार शरीर को चंगा कर सकता You है, will remove coronavirus away from my life. तो सचमुच इस कोरोना वायरस को मेरे शरीर से निकाल के बाहर फेंक सकता है। Amen. आमीन। The moment when you believe Jesus, जैसे आप प्रभु यीशु में विश्वास करेंगे, heaven will respond to your call. Hallelujah. याद रखिए स्वर्ग आपके मुख से निकले इन शब्दों का तुरंत उत्तर देगा। Heaven will respond your faith. सचमुच स्वर्ग आपके विश्वास का उत्तर देगा। Amen. आमीन। Now listen very बड़े carefully. ध्यान से सुनिए। Praise God. प्रेज द लॉर्ड। Only you have to believe. सिर्फ आपको विश्वास करना है। हालेलुया। You know, already Lord Jesus has healed people. आपको ये मालूम है कि जब यीशु मसीह थे तो उन्होंने पहले ही चंगाई लोगों को दे दी है। Amen. आमीन। Only you have to believe it. सिर्फ आपको विश्वास करके उसे ग्रहण करना है। The moment when you believe, जैसे ही आप विश्वास करेंगे, heaven will respond. तुरंत स्वर्ग उत्तर देगा And he will release the anointing and उस you are healed. अभिषेक को भेज देगा और आप चंगे हो जाएंगे। Only you have to आमीन। believe. सिर्फ विश्वास कीजिए। If you are going through storms, आप सचमुच तूफानों से गुजर रहे if you हैं, are going through financial difficulty, आप धन के उस कष्ट से गुजर रहे हैं, God is going to supply the needs. मेरे प्रियो आपकी जरूरतें सचमुच पूर्ण हो जाएंगी। Amen. आमीन। आमीन। Now see, Jesus, the Son of Man, आप देखिए यीशु मसीह जो मनुष्य का पुत्र है, but Peter is looking in that Son of Man, Son of God. और पतरस क्या देखता है? ये मनुष्य का पुत्र से बढ़कर परमेश्वर का पुत्र है। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। आमीन। Because every authority and power क्योंकि हरेक सामर्थ और अधिकार has been given to the Lord Jesus Christ. सब प्रभु यीशु मसीह को ही दिया गया है। Amen. आमीन। And the moment when you believe, और जैसे ही आप विश्वास करते हैं, God the Father स्वर्गीय पिता will send His Holy Spirit अपने पवित्र आत्मा को भेजेंगे, and it will come into you. वो आपके अंदर आ जाएगा
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Praise God. Praise the Lord. When you are in the church, जब आप कलीसिया में मौजूद होते हैं, Holy Spirit will push you पवित्र आत्मा आपको आगे की ओर लेके जाएंगे। and He will say, okay, take the prayers. वो कहेगी कि प्रार्थना ले लो। Amen. आमीन। Who gave that revelation? ये जो प्रकाशन है किसने दिया? It is the Holy Spirit. पवित्र आत्मा ने दिया। In the same manner, उसी तरह से मेरे प्रियो, Father gave the revelation about the Son to Peter. और पिता ने उस प्रकाशन को दिया पत्रस को अपने पुत्र के विषय में। Are you hearing from the Holy Spirit? क्या सचमुच आप पवित्र आत्मा से सुनते हैं? Oh, hallelujah. हालेलुया। The moment when you see Jesus Christ and believing in Him, automatically heaven will respond हालेलुया। and He will solve every problems and every needs. मेरे प्रियो, जैसे आप यीशु मसीह को देखते और उसके ऊपर विश्वास करते हैं, स्वर्ग तुरंत ही आपके इस विश्वास के द्वारा उत्तर देंगे। Before I came here, इसके पहले कि मैं इस स्थान पे आके आपसे बातचीत करता, I saw a vision. मैंने एक दर्शन देखा। A great light of fire is coming and going into your house. हालेलुया। एक सामर्थ्य और एक अद्भुत अग्नि, वो जो ज्योति है, वो सचमुच अग्नि आपके घरों में जा रहा है। Amen. आमीन। And I pray और मैं प्रार्थना करता that हूँ, God will open your eyes सचमुच परमेश्वर आपकी आंखों को खोल दें, so that you will see Him. ताकि आप प्रभु यीशु को देखने पाए। Hallelujah. हालेलुया। So that Father will come and dwell in our life. ताकि जो उनका पिता, जो हमारा स्वर्गीय पिता, वो हमारे जीवन में आके ठहर जाए। I pray today, मैं आज प्रार्थना करता हूँ, let Christ will be revealed in your life. सचमुच मसीहा आपके जीवन में प्रकट हो जाए। You know when it will happen? आपको मालूम ऐसा कब होता है? When you want to know who is Jesus. ये तब होता है जब आप ये जानने के लिए भूखे और इच्छुक हो जाए कि यीशु मसीह है कौन। आमीन। That was the hungerness in Peter. यही तो वो भूख पतरस के अंदर था। That who is this Son of Man वो ये Jesus? जानना चाहता था कि ये परमेश्वर का जो पुत्र यीशु है, ये है कौन। And the moment when he saw everything, और जब उन सारी चीजों को वो अपनी आंखों से देखता he है, said, "You are the Son of the living वो God." साफ कहता है कि तू मसीहा है, जीवित परमेश्वर का पुत्र। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। You are the angel of the Lord. तू सचमुच परमेश्वर का स्वर्गदूत है। Amen. आमीन। That's why he says, "You are Christ." इसी से वो कहता है कि तू ही मसीहा है। In the same manner, उसी तरह से मेरे प्रियो, in the Word of God also, परमेश्वर के वचन में भी Paul says in Philippians chapter 3 and verse 10, और पौलुस कहता है फिलिपियों की पत्री उसके 3 अध्याय के 10वें वचन में, that I want to know Him and the power of resurrection and the fellowship of His sufferings, being confined to His death. क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ, हालेलुया, कि वो फिलिपियंस के 3:10 में कि मैं ये जानना चाहता हूँ उसके पुनरुत्थान का सामर्थ क्या है और उसके साथ उसके दुख की जो संगति है, उसके साथ मैं जानकर उसकी मृत्यु को जानना चाहता हूँ। Amen. आमीन। That was the hungerness in Paul. यही वो भूख था पौलुस के अंदर। That I want to know who is Jesus. वो ये जानना चाहता था कि यीशु है कौन। Are you hungry to know who is Jesus? क्या आप भूखे हैं यीशु को जानने के लिए? Amen. आमीन। Hey, you will be satisfied. याद रखिए, आप तृप्त किए जाएंगे। Your hungerness will be satisfied. आपकी भूख तृप्त की जाएगी। You will eat plenty and you will be satisfied. Hallelujah. आप बहुत आयत का खाएंगे और तृप्त किए जाएंगे। You will receive so much of word of God and you will be blessed. Hallelujah. आप बहुत ज्यादा परमेश्वर के वचन को पाएंगे और आप तृप्त किए जाएंगे। Praise God. आमीन। That is the revelation. Peter had it. याद रखिए मेरे प्रियो, यही तो प्रकाशन पतरस को मिल गया। You know what happened with Peter? आपको मालूम फिर पतरस के साथ क्या हुआ? The word which he said to Peter, "You are the rock and I will build my church." और Hallelujah. फिर प्रभु यीशु ने पतरस से कह दिया, तू ही वो पत्थर है और इसी पत्थर के ऊपर मैं अपनी कलीसिया की स्थापना करूंगा। And you know, हालेलुया। और आपको मालूम मेरे प्रियो, you will see in Europe big churches, big palaces.
हालेलुया। आप यूरोप में देखते हैं कि बड़ी बड़ी कलीसियाएं, बड़े बड़े ऐसे महलों के समान कलीसियाएं। Amen. आमीन, Hallelujah. आमीन, Amen. आमीन। Just think about it. आप सोचिए, ऐसे ही थोड़ी खड़े हो गया, In the whole world, you. पूरे संसार में मसीह यीशु की कलीसिया खड़ी हो गई। Amen. आमीन। There were church under his name also. और यहाँ तक कि कलीसिया भी है पतरस के नाम से। Amen. हालेलुया। Just think about it. सोचिए इस बात को कि Hallelujah. कई कलीसियाएं विश्व में मौजूद है पतरस के नाम से। Just think about it. सोचिए इस विषय में। Just think about it. If he has, people have constructed in his name, then what about his house? सोचिए इस बात को कि कलीसिया जब बनता है पतरस के नाम से, तो उसके घर का क्या, What about his children? उसके बच्चों का क्या? It's not mentioned in the Bible. बाइबल में जिक्र नहीं है इस But विषय just में। think about आप it. सोचिए कि वो कितना महत्वपूर्ण बन गया। Think about Paul. पौलुस के विषय में सोचिए, They got revelation. क्योंकि उन्हें प्रकाशन मिल गया। Are you got the revelation? क्या आपको प्रकाशन मिला क्या? God will build your house. निश्चय ही परमेश्वर आपके घर को बनाएंगे। Not an ordinary house. एक साधारण घर नहीं मेरे प्रियो। Oh, hallelujah. हालेलुया। Praise God. Praise God. the Lord। I'll tell you, God will build mansions and palaces in your life. Hallelujah. याद रखिए, वो आपके घर में उन महलों को, उस बड़े बड़े घरों को बना के देंगे। Praise God. Praise the Lord। Because you have saw Jesus and you understand that he is the King of glory. He is the one who is going to save us. क्योंकि आपने यीशु को देखा और आप समझ गए कि वो महिमा का राजा है। हालेलुया। वो महिमा रहने वाला परमेश्वर है। Praise the Lord. आमीन, Hallelujah. आमीन। That's what he got it when he got this revelation that you are the Christ, the Son of living और ये God. सारी बातें पतरस को तब मिल गई कि जब उसे वो प्रकाशन मिला और उसने कह दिया, तू मसीहा है, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। And that particular day, Peter was connected with the heaven. और याद रखिए, उस दिन से पतरस स्वर्ग से जुड़ गया। Amen. आमीन। He was connected so strong with the heaven. वो इतनी सामर्थी तरीके से स्वर्ग से जुड़ गया। And whatever the word Jesus said, और जो भी वचन प्रभु यीशु ने कहा, it was done in his life. और वो पतरस के जीवन में पूर्ण हो गया। If today you are connected with the heaven, याद रखिए, अगर आज आप स्वर्ग से जुड़ गए हैं, oh my goodness, hallelujah. हालेलुया मेरे प्रियो, Oh, praise God. हालेलुया। I'm feeling the Holy Ghost power. मैं सचमुच पवित्र आत्मा की सामर्थ को इसी वक्त महसूस कर सकता I हूँ। don't know what is going to happen. It will be so much supernatural blessing. Hallelujah. मुझे नहीं मालूम क्या होगा, ये तो बहुत ही अद्भुत सामर्थ्य और दिव्य दैविक आशीष है। हालेलुया। I'm feeling the Holy Ghost power. मैं सचमुच पवित्र आत्मा के सामर्थ को महसूस कर सकता And I हूँ। want to blow the trumpet that God is going to Hallelujah. bless you supernaturally. मैं उस तुरही को बजा देना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको अलौकिक रीति से आशीष देंगे। हालेलुया। The heaven is blowing the trumpet call. Hallelujah. हालेलुया। स्वर्ग उस तुरही को बजा रहा That है। is going to build your house. वो आपके घरों को बनाएंगे। He is going to build your job. वो आपके नौकरियों को He is going to बनाएंगे। build your finances. वो आपके धन को बनाएंगे। He will bring breakthroughs in your life. वो आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार और कार्यों को करेंगे। Sickness and disease will go in Jesus' name. हर एक बीमारी और रोग यीशु के नाम से चला जाए। Peace will come into your house. शांति आपके घरों में आ जाए। Oh, praise God. हालेलुया, Praise God. हालेलुया। Oh, trumpet is blowing in the heaven. Hallelujah. उस स्वर्ग में वो तुरही बज रहा है। Oh, shikarabara. Hallelujah. Trumpet is blowing. Trumpet. सचमुच तुरही बज रहा है। Oh, hallelujah. हालेलुया। The word of God says, behold, he is coming. Hallelujah. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि देख वो आ रहा है। Oh, there is trumpet is blowing. Hallelujah. सचमुच तुरही बज रहा है। I can sense the King of glory is coming down from heaven in Jesus' मैं name. देख सकता हूँ कि जो महिमा का राजा है वो सचमुच स्वर्ग से उतर के आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Just believe it. सचमुच आप विश्वास कीजिए। Just believe it in the Lord Jesus. विश्वास कीजिए प्रभु यीशु मसीह।